Welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning animal tissue, that is for class 11. In this session, in this part, we have reached up to the connective tissue, and I told you there are different type of connective tissue. Whenever any question is there that which type of tissue is most abundant in the human body, so that you will write down the connective tissue. Clear? Because connective tissue is present mostly in every part of the body and they are most abundant tissue. I told you that they just occupy 30% of the tissue. Clear? Among all the tissue they contribute more. So in this connective tissue, I told you that there are different type of connective tissue. Some are loose connective tissue, some are dense connective tissue, some are skeletal connective tissue, and some are fluid connective tissue. So the first one I told you about the loose connective tissue, and in the loose connective tissue I explain you the areolar, that is very important tissue. Areolar tissue mostly present in the beneath the skin. When we have the skin and below the skin, which type of tissues are present? Those are known as areolar. And areolar is a type of what? Connective tissue. So as the name suggests, the connective tissue means that will connect the two different tissues or two different parts. That is known as what? Connective tissue. Clear? तो उसका नाम से ही पता लग रहा है कि connective tissue का क्या रोल होगा. Then in the areolar, I told you that they are mostly found in the around the organ, below the skin, and in a different part in the previous session. Let me just revise this thing, then we will switch to the next type of connective tissue. So in this diagram you are observing that the tissue is there. As I told you, the tissue, the group of cells, and in connective tissue, remember there will be a matrix. मैट्रिक्स जरूर होगा. मैट्रिक्स मतलब जो उसमें मीडियम है उसमें बहुत सारे सबस्टेंसेस होंगे. वो सबस्टेंसेस फाइबर भी हो सकते हैं, वो सबस्टेंसेस सेमी सॉलिड मटेरियल भी हो सकते हैं, वो सबस्टेंसेस फ्लूइड भी हो सकता है. याद रखना, जैसे फ्लूइड ब्लड और लिम्फ में आप लोग पढ़ोगे कि इन दैट कनेक्टिव टिश्यू द फ्लूइड फॉर्म द मैट्रिक्स, जिसमें फ्लूइड बनाता है मैट्रिक्स. तो हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी सेल्स आर देयर लाइक एस फाइब्रोब्लास्ट. What is the main role of the fibroblast is that fibroblast produces or just synthesize the fiber. वो क्या बनाता है? फाइबर बनाता है. कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, so many fibers, yellow fibers that is synthesized by the fibroblast. And fiber help in the movement में help करते हैं, flexibility में help करते हैं. This is the main role of the collagen. I told you that in our skin, when we pull our skin, the skin come and we leave the skin, just skin come to their normal shape. अपने normal shape में तुरंत आ जाता है. But मैंने आपको बोला था कि अपने grandfather या grandmother की skin को अगर आप pull करोगे तो that will not come to their normal. वो तुरंत normal की तरफ नहीं आते. ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई है? वीक हो गई है. ठीक है? छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इलास्टिसिटी कम होती रहती है. आपने ऑब्जर्व किया होगा. ठीक है? सो आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द मैक्रोफेज. मैक्रोफेज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं. दे प्रेजेंट इन द टिश्यू और दे जस्ट मूवेबल भी होते हैं. ठीक है? जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है स्किन के थ्रू अगर, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो टिश्यूज़ होते हैं कौन से टिश्यू में जाता है? एरियोलर में. और एरियोलर में क्या प्रेजेंट होगा? मैक्रोफेज. दैट विल शो फैगोसाइटोसिस. जैसे आपने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा है, दैट शो एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस. इन द सेम वे द मैक्रोफेज आल्सो शो व्हाट? Phagocytosis. Phagocytosis of what? Phagocytosis of foreign material, pathogen. Clear? After that, mast cell. I told you there are two cells in our body. One is in the blood and another one is the tissue. One in the blood, that is basophil. basophil होती है. और जो टिश्यू में होती है वो क्या होती है? मास्ट सेल. They both secrete approximately they secrete the same type of chemicals like serotonin, histamine, heparin. They contribute a very important role in our body. Like as when we have allergy, जब भी हमें एलर्जी होती है तो which chemical is released? That is histamine. वो histamine ही रिलीज होता है. That because of the histamine there is a allergy. Clear? तो that is released by which cell? Mast cell, and that is present below the skin. वो skin के नीचे present होता है. Now come to the next part. ये तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. प्लाज्मा सेल्स भी इंपॉर्टेंट है. याद रखना कि एरियोलर टिश्यूज है प्लाज्मा सेल्स आल्सो, एंड प्लाज्मा सेल्स आर द डेराइव मतलब डेरिवेशन और वी कैन से द टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. और याद रखना बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं. ठीक है? तो ये भी क्या प्लाज्मा सेल्स भी क्या करती हैं? दे आल्सो सिंथेसाइज द एंटीबॉडी. इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटीबॉडी. एंटीबॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है?
ठीक है, इन द दिस पेंडेमिक कंडीशन, कोरोना वायरस, एंटीजन एंटीबॉडी बहुत पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, ठीक है। तो एंटीबॉडी जिसके बॉडी में बन रही है अगेंस्ट द कोरोना वायरस, तो वो क्या कर रहा है, कॉम्बैट कर सकता है, ईजिली कॉम्बैट कर सकता है। और जिनके बॉडी में ऐसा नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कहते हैं वीक है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, वो कॉम्बैट नहीं कर सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। In this diagram what you are observing, this is also a loose connective tissue, ये भी एक loose connective tissue है, but one thing you are observing that make it different from the areolar, जो इसको areolar से थोड़ा सा different कर देता है, that is fat globules. You can see a large fat globules are present in these cells, fat cells, fat globules. It means that they are going to store the fat. ये किसको स्टोर करने जा रहे हैं, फैट को स्टोर करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द फैट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फैट का क्या रोल है। अब तुम कहोगे सर फैट मतलब मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं। देयर इज ए इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है, वो कितनी भी चीज़ खराब क्यों ना हो, लेकिन उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होता है, ठीक है। किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। सेम एज विद द फैट, फैट का भी यही है। अगर फैट हमारे बॉडी में बैलेंस है, एक्सेस नहीं है, कम भी नहीं है, तब तो ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट अगर हमारी बॉडी में एक्सेस भी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, देन इट इज़ ओके, अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम एज विद द फैट सेल्स आल्सो, फैट ग्लोब्यूल्स आल्सो, ठीक है। तो हमारे बॉडी में फैट का केवल ये रोल नहीं है कि ओबेसिटी बढ़ा देना, ओबेसिटी काज करना, ठीक है। फैट क्या करता है, इंसुलेट करता है, गर्म कर, हीट रखता है बॉडी पार्ट को, एंड दैट आल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। यू कैन अंडरस्टैंड कि आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, हाउ दे आर प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी, दे आर हैविंग अ थिक लेयर ऑफ फैट अराउंड देम, उनके ऊपर एक फैट लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द शॉक। जब भी हमें कोई शॉक मिलता है या इंजरी होती है, तो दीज फैट सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। एंड वेन एवर वी अंडरगो द फास्टिंग, आपको पता है जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द एडिपोज टिश्यू, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। एडिपोज, एडिपोसाइट से बना एडिपोज, ठीक है। सो इन द एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट, दे आर स्पेसिफिक टू स्टोर द फैट, ये किसके स्पेसिफिक होते हैं, फैट के स्टोरेज के लिए। दे आल्सो प्रेजेंट beneath the skin, around the internal organs, and they provide a very good important mechanical support in our body. So let's see what are the adipose type of tissue. They are also what, loose connective tissue. So adipose tissue, in this fibroblast, I told you there will be a fibroblast modified for fat storage. यहाँ पे आप देख सकते हो in the diagram that there are no collagen and all, but they are modified to store the fat. फैट का स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो गए। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल ओवल सेल्स कॉल्ड फैट सेल्स, जिसको एडिपोसाइट्स भी बुलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी 2, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। विच सेक्रेट अ हार्मोन, जो एडिपोसाइट्स होती हैं, नाम से देखो बहुत ईजी है याद करना। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, एडिपोसाइट्स। वेर एवर इन द बायोलॉजी, वेर एवर यू आर हैविंग साइट, साइट का वर्ड मतलब ही होता है, उसका मीनिंग ही होती है क्या, सेल से। तो एडिपोसाइट्स मीन्स द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू दैट सेक्रीट अ हार्मोन लेप्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। लेप्टिन हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कितनी लगनी है, ज़्यादा लगनी है, कम लगनी है, दिस इज बिकॉज वन हार्मोन दैट इज लेप्टिन, एंड लेप्टिन इज सेक्रेटेड बाय विच सेल, एडिपोसाइट्स। क्लियर है। तो स्टोरेज, जिनके में ज़्यादा जैसे एपेटाइट है, ठीक है, हो सकता है वो दुबले हों, लेकिन वहाँ पे स्टोरेज क्या है, ज़्यादा है। तो देर आर टू टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू, दो टाइप के एडिपोज टिश्यू होते हैं, वाइट और ब्राउन। जैसे आपने ब्रेड खाई होगी ना, वाइट और ब्राउन, सबने खाई होगी, वाइट ब्रेड होती है और ब्राउन ब्रेड होती है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है इन्फेंट को, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब तक उनकी एज 5 ईयर या 6 ईयर होती है, आपने उनको कभी शिवरिंग करते हुए नहीं देखा होगा, कन्फर्म है। जैसे हमें व्हेन वी फील कोल्ड, जब हमें ठंडी लगती है या फीवर आता है, तो वी स्टार्ट शिवरिंग, हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग मतलब समझ रहे हो ना, कांपना। बट छोटे बच्चों में आपने कभी उनको नहीं देखोगे, अगर उनको कितना भी हाई फीवर हो जाए, कितना भी कोल्ड हो जाए, दे विल नॉट शो शिवरिंग, वो शिवरिंग नहीं शो करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बॉडी में ब्राउन फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाइट फैट का अमाउंट कम होता है। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली जो ब्राउन फैट है ना, दैट प्रोवाइड लेस एनर्जी, एनर्जी तो कम देता है बट हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हीट ज़्यादा होगी तो शिवरिंग की नीड नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में जब धीरे धीरे वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है, तो ब्राउन फैट जो होते हैं वो कम होने लगते हैं और वाइट फैट बढ़ने लगते हैं। उससे क्या होता है,
तो वाइट फैट में क्या है, वो एनर्जी ज़्यादा दे रहा है लेकिन हीट कम प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वाइट फैट एंड द ब्राउन फैट. समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग पॉइंट पता लगा. 2 पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग पता लगे यहाँ पे. वन इज अबाउट द लेप्टिन, दैट इज द हार्मोन दैट रेगुलेट द एपेटाइट, जो एपेटाइट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. एंड नेक्स्ट वन, वाइट एंड ब्राउन फैट एज द ब्रेड. जैसे आप ब्रेड खाते हो वाइट एंड ब्राउन, सेम एज वाइट एंड ब्राउन फैट्स आर देयर इन द बॉडी. ब्राउन फैट किस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, इन द इन्फेंट, ठीक है, और बेबीज में. ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज. इट इज फाउंड इन न्यू बॉर्न मैमल्स. When it is metabolized, it produces less energy. याद रखना, एनर्जी लेस. याद कैसे रखोगे, देखो, अगर हमें शिवरिंग से बचना है तो हमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी अपने बॉडी में. जैसे हम ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, वी आर ब्लैंकेट, वी वियर जैकेट, ठीक है, तो पुल ओवर पहन लेते हैं. उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो रिटेन रह जाती है. तो हीट होगी तो शिवरिंग नहीं होगी. समझ में आए? इसी तरह से याद कर सकते हो कि जो ब्राउन फैट होता है दैट प्रोड्यूस मोर हीट, लेस एनर्जी. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि वाई स्मॉल बेबीज़, ठीक है, और द न्यू बॉर्न बेबीज़ डू नॉट शिवर क्यों नहीं करते, ब्राउन फैट की वजह से. वाइट फैट सपोर्टिंग किडनीज, ये किडनीज है, आईज़ है. आईज़ का जो शेप होता है ना, वो सब फैट की वजह से होता है. जो आई बॉल का जो शेप है वो फैट की वजह से होता है. प्रोड्यूसेस हीट, जो हीट भी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, लेकिन हीट के कंपेयर में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. फंक्शन क्या है एडिपोज का, आपको पता है, मेनली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करेगा. इंसुलेट मतलब हीट प्रोवाइड कराना. कुशनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन, कुशन, जैसे आप जानते हो कुशन्स होते हैं. कुशन्स में अगर कुशन के नीचे कोई चीज़ है तो चोट नहीं लगती. सेम एज कुशनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स. थर्मो रेगुलेशन, एक नया टर्म है आपके लिए, थर्मो रेगुलेशन. मेंटेनेंस ऑफ द हीट, टेम्परेचर को मेंटेन करना ही क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन. थर्मो मतलब टेम्परेचर हो गया, रेगुलेशन मतलब समझते ही हो. तो इस तरह से व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन. एक और टर्म आप कभी भी पढ़ सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन. वेर एवर यू आर हैविंग ऑस्मो, ऑस्मो इज रिलेटेड टू द वाटर. तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड थर्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. क्लियर है? तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड 2 टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया. लूज का क्या मतलब है, दे कैन एडजस्ट, दे कैन एकोमोडेट देयर सेल्फ एट पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी प्लेस पे एकोमोडेट कर सकते हैं. जो चीज़ लूज होती है वो कहीं पे भी जाके एंटर करके अपने आप को एकोमोडेट कर सकती है. जैसे वाइटल ऑर्गन्स है, चली गई, उसके ऊपर एक कवरिंग बना ली. तो इस तरह से ये होते हैं. लेकिन जो डेंस, नेक्स्ट जो टिश्यू पढ़ने जा रहे हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है, इनके जो फाइबर्स होंगे, जिनके जो भी मटेरियल्स होंगे, दे विल बी अरेंज इन अ डेंस फॉर्म. वो डेंस फॉर्म में अरेंज होंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड, आपको नाम से ही पता लग रहा है, क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स. इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होगा, कोलेजन फाइबर ज़्यादा होंगे. दैट्स वाई दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ओरिएंटेशन, जैसे आपने रेगुलर, कोई भी चीज़ अगर रेगुलर पैटर्न में है, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था जब इंट्रोड्यूस किया था, जैसे आपकी एक टी शर्ट है, टी शर्ट पे स्ट्रिप लगी हैं, ब्लैक वाइट, तो आप क्या कहोगे, तो रेगुलर है, मतलब रेगुलर टी शर्ट है. लेकिन अगर वही एक टी शर्ट है जहाँ पे स्ट्रिप्स लगी हैं, कहीं ब्लैक हैं, कहीं वाइट है, मतलब इधर उधर हैं, स्कैटर्ड हैं, तो वो क्या है, इर्रेगुलर है. समझ में आ गई बात? तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के बेसिस पे देयर आर 2 टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. वन इज रेगुलर, अनदर वन इज द इर्रेगुलर. विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड. देखो, अब बताओ इसमें से कौन सा रेगुलर है, कौन सा इर्रेगुलर है. टेक योर टाइम, यू कैन टेक 5 to 6 सेकेंड एंड जस्ट आइडेंटिफाई विच इज रेगुलर एंड विच इज इर्रेगुलर. द फर्स्ट वन इज व्हाट, रेगुलर. ये रेगुलर है, और ये क्या है, इर्रेगुलर है. इर्रेगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें देख रहे हो जो फाइबर्स हैं वो, उनका कोई पैटर्न नहीं है, मतलब उनका जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर नहीं है. बट इन दिस फर्स्ट वन यू कैन सी द fibers are arranged in a regular manner, regular fashion. So we can say this is a dense regular connective tissue and this is dense irregular connective tissue on the basis of their orientation of the fiber. Both are having collagen fiber, remember, and they are having little matrix. Now you can understand what are the function of these type of tissue in our body. Do you know about, have you heard about the tendon and ligament? क्या आपने कभी टेंडन और लिगामेंट के बारे में सुना है कि लिगामेंट इंजरी हो गई, टेंडन इंजरी हो गई? सुना है? तो सुना होगा. अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ होगा, किसी को स्प्रेन हुआ होगा, तो उसने सुना होगा कि आपकी लिगामेंट में पुलिंग हो गई, एक्सट्रेस पुलिंग हो गई.
ठीक है, आपके जो टेंडन है वो ब्रेक हो गया, ऐसा सुना होगा, क्लियर है। तो टेंडन और लिगामेंट आर द टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो किसके एग्जाम्पल हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेट्स सी व्हाट डू दे परफॉर्म, व्हाट डू दे फंक्शन परफॉर्म इन आवर बॉडी। फॉर्मिंग मसल शीथ, शीथ वेर एवर यू आर इन द बायोलॉजी वेयर यू आर हैविंग शीथ, जहाँ पे भी शीथ वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, कवरिंग करना। मसल सेल्स, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, देयर इज अ चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ पे आप स्केलेटल मसल्स के बारे में बहुत एलेबोरेट फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है। तो देयर यू विल स्टडी अबाउट द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के ऊपर एक शीथ होती है, कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज फैसिया, ठीक है। फैसिया होती है, जैसे हमारे स्किन के ऊपर मान लो ये लेयर है, कोई लेयर है, ठीक है, अब वो एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड होके वो मसल से कनेक्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज टेंडन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन, टेंडन कनेक्ट द मसल्स टू द बोन। टेंडन जो है वो मसल्स को किससे कनेक्ट करती है, बोन से कनेक्ट करती है, समझ में आया। सबसे पहले मसल्स, मसल्स के ऊपर कवरिंग होती है जिसका नाम है फैसिया, अब वो एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड होके किससे जाके कनेक्ट हो गई, बोन से कनेक्ट हो गई। तो द टिश्यू विच कनेक्ट द मसल्स टू द बोन इज नोन एज टेंडन, ठीक है। एंड टेंडन में आल्सो अटैच मसल्स टू स्ट्रक्चर एज आई बॉल, जैसे आई बॉल में अटैच हो जाती है, दैट इज नोन एज, जैसे हम आई जो है हमारे एक ऑर्बिट में है, ठीक है, एक सॉकेट है उसमें सिचुएटेड है, तो उसमें जो टेंडन्स होते हैं उसी के वजह से जो मसल्स होती हैं उससे अटैच होते हैं, क्लियर है। तो टेंडन का समझ में आ गया कि टेंडन इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द मसल्स टू द बोन। नाउ कम टू द लिगामेंट। देखो याद कैसे करेंगे, रिटेन कैसे करेंगे, प्रॉब्लम ये होती है रिकॉल करने वाली। जब एग्जाम टाइम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंडन मसल्स बोन को कनेक्ट करेगा कि लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। नाम याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो लिगामेंट में लेटर्स ज़्यादा हैं, LIGAMENT 8 लेटर्स हैं, और टेंडन में कितने लेटर हैं, TENDON 6 लेटर्स हैं। तो आप समझ सकते हो टेंडन में लेटर कम है और लिगामेंट में लेटर क्या है, ज़्यादा है। आपकी बॉडी में कौन सा बड़ा पार्ट होगा, मसल्स की बोन, अगर देखो तो बोन बड़ी है, ठीक है, जो बड़े पार्ट को कनेक्ट करेगा उसमें लेटर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो लिगामेंट हमेशा याद रखना, लिगामेंट कनेक्ट द बोन टू द बोन, हमेशा लिगामेंट एक बोन को किससे कनेक्ट करता है, दूसरे बोन से। लेकिन टेंडन क्या करता है, मसल्स को किससे कनेक्ट करता है, बोन से कनेक्ट करता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से टेंडन क्या है, कनेक्ट मसल्स टू द बोन, MTB, MTB मतलब M फॉर मसल्स, T फॉर टेंडन एंड B फॉर बोन। तो MTB याद है ना, एक टीवी एक चैनल है MTV, उसी तरह से याद कर सकते हो MTB। उसके बाद लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो BLB, तो B फॉर बोन, L फॉर लिगामेंट एंड B फॉर अगेन बोन। दो बोन को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, लिगामेंट, याद रखना। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि स्प्रेन होने लगता है, जब भी हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या रनिंग ही कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी स्प्रेन हो जाता है। स्प्रेन क्यों होता है, एक्सेस पुलिंग ऑफ द लिगामेंट, जब हम लिगामेंट को कुछ ज़्यादा ही पुल कर देते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्प्रेन की, क्लियर है। एक्सेस पुलिंग ऑफ द लिगामेंट कॉजेस स्प्रेन, उसी को स्प्रेन बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन इज द एग्जाम्पल एंड लिगामेंट इज द एग्जाम्पल, एंड हाउ विल यू रिकॉल इट, आई टोल्ड यू द ट्रिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दे आल्सो फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। बोन की जो इसके मतलब जो टिश्यू होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। देखो पेरी मतलब होता है पेरीफेरल रीजन, ओस्टियम बना ही है बोन से, ओसियम, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे ऑस्टिकाइज, जैसे आपने पढ़ा है, जब बोनी टिश्यू को क्या बुलाते हैं, ऑस्टिकाइज, तो ऑस्टी वर्ड आ गया, उससे रिलेटेड है बोन से। पेरी मतलब होता है पेरीफेरल रीजन, तो दीज आल्सो फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम, क्लियर है। एंड दे आल्सो फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनीज एंड लिम्फ नोड्स। तो ये फंक्शन एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभी आपने एडिपोज पढ़ा था, वो भी यही फंक्शन कर रहा है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी यही फंक्शन कर रहा है। तो आपको मैंने बताया कोई भी ऑर्गन है तो वो एक टिश्यू से नहीं बना होगा ना, डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे, लेकिन हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक रोल जरूर होगा। जैसे स्क्वेमस का क्या है, डिफ्यूज़न करना है, लेकिन अगर वो मल्टी लेयर्ड हो गया तो प्रोटेक्शन करेगा, क्लियर है। तो इस तरह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया। इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू देयर आर टू, वन इज इरेगुलर एंड अनदर वन इज द रेगुलर, एक रेगुलर है और एक क्या है, इरेगुलर है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता लग रहा है इलास्टिक। अब आपकी बॉडी में देयर आर सो मेनी ऑर्गन वेयर देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जहाँ पे इलास्टिसिटी की नीड होती है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर,
अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की बात करो, इफ़ यू टॉक अबाउट योर दिस वॉल ट्रैकिया की बात करो, ठीक है, तो ट्रैकिया में भी क्या है, एक्सेस पुलिंग की नीड होती है, क्लियर है। तो वेयर एवर देर इज अ नीड ऑफ एक्सटेंशन, जहाँ पे एक्सटेंशन की जरूरत होती है, स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, देयर विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। दे आर आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी में नहीं है। few topics which I am going to describe you that is outside of the NCERT. तो let's see, elastic, नाम से ही पता लगे, elastic connective tissue is mainly made up of elastic yellow fiber। याद रखना ये किस फाइबर के बने होंगे, येलो फाइबर, ठीक है। और येलो फाइबर कौन सेक्रीट करेगा, कौन सिंथेसाइज करेगा, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। देयर आर फ्यू फाइब्रोब्लास्ट एंड द मैट्रिक्स मेनली ऑफ येलो फाइबर सेक्रीटेड बाई फाइब्रोब्लास्ट, ठीक। अब इनका लोकेशन देखो, लंग के टिश्यू हैं, आपको पता है लंग भी क्या करता है, एक्सटेंड करता है। व्हेन वी इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होता है, दैट डायलेट करता है, तो एक्सटेंशन वहाँ पे भी हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज में जो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो इलास्टिक ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे भी इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होगा। ट्रैकिया, विंड पाइप इसको बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब, स्किन, यूरिनरी ब्लैडर, दे ऑल रिक्वायर स्ट्रेचिंग, इनमें एक्सेस स्ट्रेचिंग चाहिए, दैट्स वाई दे कंटेन विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कम टू द लास्ट वन, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब नाम से देखो पता लग रहा है रेटिकुलर, इन बायोलॉजी वेयर एवर यू आर हैविंग रेटिकुलर, इसका मतलब है क्या, नेटवर्क फॉर्म्स अ स्कैफोल्डिंग फॉर अदर सेल्स, ये स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं अदर सेल्स के लिए, अदर ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन दे प्रोवाइड दिस स्कैफोल्डिंग फॉर द अदर सेल्स एंड द ऑर्गन्स। इनका मोस्टली जो लोकेशन है बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स मतलब जहाँ पे लिम्फ वेसल्स कलेक्ट हो जाती हैं उसको बुलाते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्प्लीन इज अ ऑर्गन वेयर द आरबीसी डाई, जहाँ पे आरबीसी 120 डेज के बाद क्या हो जाती हैं, रप्चर्ड हो जाती हैं, दैट्स वाई स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन को हम क्या बुलाते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो दीज टिश्यूज, दीज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड इन द बोन मैरो, इन द लिम्फ नोड्स एंड इन द स्प्लीन, एंड मोस्टली दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द ऑर्गन, दैट्स इट, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए एरियोलर है, फिर एडिपोज है, आपने एडिपोज के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, दैट इज इलास्टिक, जहाँ पे भी स्ट्रेचिंग की जरूरत होगी, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और लास्ट वन इज द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी हैव टू स्टडी द कार्टिलेज, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू एंड द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसको हमने पढ़ना है, दैट इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, और till that whatever topics I taught you, revise those topic, ठीक है। एंड अच्छे से समझिए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।